हेलो। हाँ कार्तिक, हाँ सर, स्टार्ट। स्टार्ट करो। ओके, यस। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, last class I think we have finished till the page number 41, and I think we have finished. Do you know we have discussed about the Forest Conservation Act of 1980. I have shown you small video of Forest Conservation Act, and I think we have discussed about Environmental Conservation Act, right, of 1986. I told you today we discuss the चिपको मूवमेंट एंड अदर थिंग. तो ना राइट हैंड साइड में दिया है वन क्वेश्चन दे वाज लेट्स डिस्कस, एंड लेट्स डिस्कस में the first question they collect the information about the Chipko movement and discuss between the two groups of your class about is important in a present situation. What do you mean by Chipko movement? Chipko movement मतलब actually it started in the late in the year 1731 in Rajasthan in a Jodhpur. There is a community called as a Bishnoi. You know Bishnoi community बहुत ही famous community है राजस्थान का. Those who preach the environment and environment की पूजा करते, for them the animals, the trees are like a god. आपने सलमान खान का केस देखा होगा. सलमान खान ने जो ब्लैक डियर को मारा था, यू नो, वो कहाँ मारा था? राजस्थान में, राइट. उसके अगेंस्ट इतने साल से जो केस लड़ रहा, कौन लड़ रहा है? द बिश्नोई कम्युनिटी. फॉर देम द एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर लाइक अ गॉड. There was an incident which took place in a year 1731. The king of Jodhpur, he wanted to make a palace, and the for palace he wanted a wood. तो उसने क्या किया? He told to cut down the trees. उसने क्या बोला कि please cut down the trees. We want a huge amount of wood to make a what? To make a palace. When the soldiers started cutting down the trees, the female of that village, when they came to know he did what? The soldiers are cutting down the trees. What they did? They start hugging the tree. चिपको मतलब चिपकना, पकड़ना. They start hugging the tree. ट्रीज को ऐसे जोर से पकड़ लिया. हर फीमेल्स ने, या घर के हर फीमेल्स ने निकले हैं, हाल उन्हें हर ट्रीज को ऐसा पकड़ लिया. उन्हें बोला अगर आपको ट्री को कट करना है तो विल हैव टू किल अस. और आप ट्री को कट करोगे तो पहले हमें किल करो, देन विल यू कैन कट डाउन द ट्रीज. उसमें मोर देन 300 पीपल्स have sacrificed their life. More than 300 फीमेल अपना लाइफ दे दिया तो ट्रीज को बचाने के लिए. बाद में जब किंग को भी रियलाइज हुआ कि he has done a big mistake, एंड बाद में उसने ऑर्डर कर दिया कि यहाँ का कोई भी ट्रीज, कोई भी एनिमल्स को कोई किल करेगा तो उसको क्या होगा? उसको पनिशमेंट मिलेगा. और रूल आज भी चालू है. दे स्टिल वर्शिप द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एज अ गॉड. बिश्नोई कम्युनिटी वहां से इन 1731 में चालू हुआ है. रिसेंटली आपने देखा उत्तरांचल में भी हुआ है रिसेंटली, और बहुत जगह उन्होंने चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया. आई थिंक आर्य कॉलोनी मालूम है रिसेंटली केस. आर्य कॉलोनी में देवर कटिंग डाउन ट्रीज, दे स्टार्टेड चिपकू मूवमेंट. इसमें उन्होंने ट्रीज के साथ चिपकना चालू कर दिया. ऑल ओके, दिस चिपकू मूवमेंट वाज टू सेव द एनवायरनमेंट. ये सारा चीज उन्होंने किया है टू सेव द एनवायरनमेंट. तो चिपकू मतलब व्हेन यू आर हगिंग द ट्री, यू आर कैचिंग द ट्रीज को आप पकड़ रहे. क्यों? क्योंकि nobody can harm the tree, nobody can cut down the trees. That चिपको मूवमेंट, हिंदी का मतलब चिपको, चिपकना, कैचिंग. That movement is came to be known as the चिपको movement. Okay, I have removed a small video. Then उसके बाद से आपका डाउट और क्लियर होगा about the चिपको movement. Okay, so first I will show you the video for चिपको movement, and then I will discuss a little bit more about the चिपको movement. Yes.
very small video, लेकिन The recent Chipko movement started when the villagers in the Uttarakhand region hugged the trees and prevented the men from cutting them down. Chipko means hug or cling. The movement was started by Gaura Devi with the help of other women and little girls. One day, a little girl in a village in Garhwal noticed a few men with saws and axes quietly entering the forest. She went and informed Gaura Devi. Gaura Devi collected a group of women and little girls and went into the forest and asked the men not to cut down the trees. The men threatened them with guns, but they just clung to the trees. The men had to finally leave. Sundarlal Bahuguna is another leader of the modern-day Chipko movement. The original Chipko movement started in a small village of Rajasthan some 300 years ago. There was a village named Khejadi. The people of this village, the Bishnois, loved their trees. Once the ruler of Mewar sent a group of people to cut the trees. The king needed wood to burn lime to be used in the construction of a new palace. The people of Khejadi refused to allow the king's men to cut the trees. They hugged the trees. In trying to save the trees, more than 300 people lost their lives. When the ruler of Mewar came to know about this incident, he felt very guilty. He immediately passed an order that no one should cut trees in Khejadi village. Trees grow naturally in the forests. It is our duty to save and preserve them for the betterment of our environment. Very much clear what do you mean by a Chipko movement. Chipko मतलब hugging and clinging. 1731, so look in 300 years back. Actually, it started movement in Rajasthan. Bishnoi community, I already explained about the Bishnoi community. They preach or they worship the plants and animals. When the king was cutting down the trees, what they cling and hug the trees, and more than 300 people lost their life. Then in many places in the India, this movement took place. One of the famous is of the Uttaranchal, okay, where the Amrita Devi was the woman who hugged the trees and the small child, and they saved the trees. I told you recently it took place in the Maharashtra also in the RA colony when the government were cutting down the trees for what? Metro rail for car shed for metro railway, and many people what agitated against the government, and they started hugging the clinging the tree. You understood? The Chipko movement is the movement in which we cling or hug the trees to save the trees. Many people have lost their life for the trees. So now you can understand. Many people have lost. So this movement is only for the environment, for the safeguard of the trees. So everybody understood Chipko movement? Okay, if you want, you can collect the information from internet. You can add some more points about the many incident which has taken place in the India, okay, regarding this movement. Okay, to clear to everybody, you can make a point for Chipko movement. If it comes right as shown on Chipko movement, okay, you will have to write down. Clear to everybody? Okay. Next was they've given, internet is my friend. Now there was sound pollution control and prevention rule of 2000. This is what we have to search from internet. Actually, you have to search. But I have removed some information from internet. I will share with you. If you want, you can copy. It will help you for making a notes. Or if suppose the question comes in the exam. Okay. So slowly I will read out some important points of the what control and prevention rule made for a sound pollution in the year 2000. Okay. Very much clear to everybody. Okay. First I will open the textbook and then we will
I will discuss with you the sound pollutions. Okay. It's taking some time to open. Okay, we are on page number 41. Yeah, I think we are on this page. Yes, we are on this page. And see what questions they have asked. Okay, so already we have discussed this information about Chipko movement. The next question they get, internet is my friend, but this information you have to find out from internet. It is not given anywhere in a textbook. I removed some point. If you want, you can copy this point. I hope everybody is having a pencil or a book along with them. I will discuss some of the rules made by the government in year 2000 to control the sound pollution. Now, what are the rules? Ambient air quality standard, ambient, AMBIENT, ambient air quality standard in respect of noise for different areas and zones. Ambient air quality मतलब ambient मतलब एकदम प्रॉपर गुड लेवल और वेरी राइट लेवल, ज्यादा भी नहीं करते, एकदम राइट लेवल जितना चाहिए. Ambient air quality standard in respect of noise for different areas and zones. हर एक एरिया, हर एक जोन के लिए a government had decided some ambient air quality for sound, and they are decided with the help of a unit called as a decibel. The intensity of sound is measured in a decibel, a unit called decibel. तो हर एक एरिया के लिए डेसिबल डिसाइडेड है. इस एरियाज में द साउंड क्वालिटी शुड बी 20 डेसिबल, इस एरिया में द साउंड क्वालिटी शुड बी 30 डेसिबल, दिस एरियाज में द साउंड क्वालिटी शुड बी 50 डेसिबल. तो एरिया और जोन के हिसाब से द साउंड का एम्बिएंट क्वालिटी हैज बीन डिसाइडेड. नाउ व्हाट यू मीन, व्हाट डज इट मीन? मैं एक एग्जांपल बता देता हूं. देयर इज द इंडस्ट्रियल जोन एंड देयर इज अ हॉस्पिटल जोन. जो एरिया इंडस्ट्रियल जोन एंड हॉस्पिटल जोन, अब बताओ मुझे कहाँ पे साउंड का ज्यादा रिलैक्सेशन होगा? इंडस्ट्रियल जोन में द डेसिबल साउंड का ज्यादा रिलैक्सेशन है. मींस हियर यू कैन मेक अ साउंड, यू कैन क्रिएट अ साउंड ऑफ 80 to 120 डेसिबल, उतना साउंड अलाउड करेंगे, no problem. But अगर हॉस्पिटल जोन है, you cannot create a sound or you cannot make a sound or produce a sound more than 20 decibel. तो जोन और एरिया के हिसाब से a government had decided and a decibel or intensity. So the first point is ambient, AMBIENT, ambient air quality standards in respect of noise for different areas and zones. Government decided in which rule? In a rule 2000. Second, responsibility as to enforcement of noise pollution control measures. Responsibility as to enforcement of noise pollution control measures. उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है टू एनफोर्स द रूल्स. एनफोर्स मतलब अप्लाई द रूल. देयर आर डिफरेंट नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, ओके, व्हाट ग्रुप्स जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, उनको पावर दिया है टू एनफोर्समेंट द लॉ, टू व्हाट यूटिलाइज द लॉ, टू सैंक्शन द लॉ इन सर्टेन एरियाज, जिससे साउंड क्वालिटी, साउंड पोल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट, responsibility as to enforcement of noise pollution control measures is the second rule for control and prevention for sound pollution. Restriction on the use of loudspeakers, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स. आपका जहाँ आप लाउड स्पीकर यूज कर रहे हो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस है. आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम मतलब अब जैसे पॉलिटिशियंस है, दे एड्रेस द पब्लिक, दे मेक अ रैलीज आती है ना जब पब्लिक, उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना दिया है. द बेस्ट एग्जांपल इज शिवाजी पार्क ऑफ दादर. जो आजू बाजू में रहते हैं उनको पता होगा. अभी शिवाजी पार्क में रैलीज का इतना इजीली परमिशंस नहीं मिलता है. क्यों? कि वहाँ के आजू बाजू लोगों ने क्या किया? दे हैव कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ साउंड पॉल्यूशन कि बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है. when the leaders comes and does the rallies, उस पे कंटिन्यूअसली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है. आई थिंक पूरे ईयर में खाली एक या दो रैलीज अलाउड है, एंड उसमें भी डेसिबल कितना होना चाहिए? लेस देन 40. अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, but there is a rule they have made that if you are making a rallies at Shivaji Park, the sound quality should be I think less than 40 decibels. तो ऐसा restrictions बना दिया है. और आप लाउड स्पीकर यूज कर रहे हो या कहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम कर रहे हो तो आपको इतना डेसिबल साउंड करना है. एंड टाइम लिमिट,
आपको मालूम है लाउड स्पीकर का टाइमिंग क्या है बेटा? रात को 10 बजे 10 PM पे क्लोज करना, उसके बाद अब लाउड स्पीकर्स एंड पब्लिक रिलीज नहीं अलाउड है, आपको पता होगा। तो रात को 10 PM से सुबह 6 AM तक, दिस इज द टाइम यू कैन नॉट यूज अ पब्लिक एड्रेस, नहीं कर सकते हो, स्पीकर लाउड स्पीकर ऑन नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट इन योर प्रीमाइसेस। घर में तो ठीक है, अगर बाजू को डिस्टर्ब नहीं चलेगा, बट ओपन एरिया में नॉट अलाउड है। ये सारा रूल्स बनाया गया किसमें? साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल इन 2000 में। Again, I'm repeating, restriction on the use of loudspeakers and public address system. Consequence of any violation in the silent zone area. What are the silent zone area? कौन-कौन सा silent zone area है? Hospitals comes in a silent zone area. Court comes in a silent. The schools comes in a silent zone area. ये सब silent zone area है। यहाँ पे अगर आपने violation किया, you can have to pay a severe consequence, मतलब you can get of punishment, fine और जेल भी हो सकता है। You cannot create a sound in a silence zone area, और ऐसा किया you can suffer a consequence, आपको consequence suffer करना पड़ेगा। This is the rule made in a for control and prevention of sound pollution in 2000. Again I'm repeating, consequence of any violation in a silent zone area का रूल बनाया गया था। Complaints to be made to the authority. आप अथॉरिटी को क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपका बाजू वाला डिस्टर्ब कर रहा है, आपके एरिया में डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ साउंड के कारण, यू कैन गो टू द अथॉरिटी एंड कंप्लेन। आपको पावर दिया, यू कैन कंप्लेन टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी बैठे हुए हैं, एवरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देयर आर डिपार्टमेंट फॉर जो साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं। आप जाइए, यू कैन कंप्लेन, आपका कंप्लेन सुना जाएगा। And next, again repeating the point, complaints to be made to the authority and power to prohibit etc. continuance of music, sound and noise. Power to prohibit etc. continuance. अगर ज्यादा म्यूजिक साउंड नॉइज है तो उसके पास पावर है टू प्रोहिबिट, मतलब उसको बंद करने का पावर दिया गया है सर्टेन अथॉरिटी एंड पुलिस को। ओके, तो आपको कंटिन्यूस करना है म्यूजिक, साउंड एंड नॉइज, यू हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ पुलिस। अगर पुलिस चाहे तो आपको स्टॉप कर सकते हैं, आप अपने मन से कंटिन्यूएशन ऑफ म्यूजिक, साउंड एंड नॉइज नहीं कर सकते हो। पावर टू प्रोहिबिट व्हाट? कंटिन्यूएशन ऑफ म्यूजिक, साउंड और नॉइज। These are the points. There are many points, 15 पेजेस का पॉइंट है, सब हमको लर्न नहीं करना। These are the important points. इसका आने का चांसेस भी बहुत ही कम है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये इंटरनेट इज माय फ्रेंड, मतलब इंटरनेट के थ्रू को फाइंड आउट करना है। दिस इज ओनली फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, बट विदाउट एनी टेकिंग रिस्क, because this chapter is minimum for 5, maximum for 7, so we don't want to take risk, इसलिए मैंने 5 to 6 पॉइंट बनाया हुआ है। this much is more than enough। आपको भी चाहिए तो आप नेट से इसमें से पॉइंट निकाल सकते हो। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आर द पॉइंट दे हैव मेड, जो मैंने निकाला है। अगर किसी ने बाय थिंग मिस कर दिया लिखने में या उनको लिखना है तो वापस दे कैन गो थ्रू। फर्स्ट पॉइंट, एम्बिएंट, AMBIENT, ambient air quality standards in respect of noise for different areas and zones। first point हो गया। second, responsibility as to enforcement, ENFORCEMENT, enforcement of noise pollution control measures, this is second point। restrictions on the use of loudspeaker and public address system, this is third point। restriction on the use of loudspeaker and public address system। fourth point, consequence of any violation, consequence of any violation in a silence zone area। next point, a complaints to be made to the authority, you can directly complain to the authority, complaints to be made to the authority। and last point, power to prohibit etc. okay, power to prohibit continuance of music, sound or noise। You understood? this much is more than enough point। समझ में आपको? मैंने पूरा नेट पे चेक किया, इसका PDF 15 पेजेस का है। that much is not important, is the most important point जो मैंने आपके लिए निकाला है, is more than enough। clear? तो अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो कैन राइट डाउन, नो इश्यूज। नेक्स्ट इज द बायोमेडिकल वेस्ट। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? एनीबॉडी नो बायोमेडिकल वेस्ट? यस, द वेस्ट डेवलप इन हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल्स में वेस्ट निकलता है उसके लिए भी रूल बनाया। वाई रूल बनाना बहुत कंपल्सरी था? क्यों? कि द वेस्ट व्हिच कम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल दे कंटेन अ वायरस एंड बैक्टीरिया, उनके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट है। व्हाट इज माय पैथोजेंस? This is causing microorganisms।
if these waste are directly released into the environment, it can damage to the environment, can cause a disease to a normal human being, बिकॉज उसके अंदर पैथोजेंस प्रेजेंट है, वो बीमार लोगों से आया हुआ है, द पेशेंट्स की बॉडी से आया हुआ है सारा वेस्ट. इसको मैनेज करने के लिए हैंडी के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बनाई विच ईयर 1998. एंड व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगेन भी 15-16 पेजेस का पीडीएफ है. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू, उतना मोर देन इनफ है. इफ यू वांट you can copy this. Okay, what is given? First point, biomedical waste shall not be mixed with other waste. पहला point है biomedical waste shall not be mixed with other waste. आपको biomedical waste को किसी और waste के साथ mix नहीं करना है. First rule, a biomedical waste should not be mixed with other waste. Understood? First point. Second, a biomedical waste shall be segregated into, segregated मतलब separated, segregated का मतलब होता है separation. Okay, biomedical waste shall be segregated, segregated, segregated into container. आपको container में उसको separate करना है. किसको? biomedical waste. Okay, bags में, in container और bags at the point of generation. जहां पे जनरेट हुआ, कहाँ पे जनरेट होता है? लैब में, हॉस्पिटल में. तो लैब एंड हॉस्पिटल में ही उसको सेपरेट कंटेनर में या बैग में स्टोर कर देना है. वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का ओके काम नहीं है. इट इज नॉट द जॉब ऑफ बीएमसी. जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको वहीं पे ही बायोमेडिकल वेस्ट को सेपरेट करके हैव टू स्टोर इन अ कंटेनर और अ बैग in accordance with the prior to its storage transportation. Transport storage होने के prior ही they have to store this in a container and bag. Okay, and treatment and disposal. तो treatment, disposal या transportation होने से पहले at the place, at the source जहाँ पे biomedical waste generate हो रहा है वहीं पे उसको segregate करके container bag में आना है. The municipal authority will come directly, वो बैग को उठाएंगे and they will take away. उनको जाके वापस सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. सोर्स पे ही सेपरेट करने का रूल बना है, यानी हॉस्पिटल्स लैब को वहीं पे सेपरेट करके रखना है. अंडरस्टूड द सेकंड रूल व्हाट दे हैव मेड इन द 1998. फॉर अगेन आई एम रीडिंग, बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी सेग्रीगेटेड इनटू कंटेनर बैग्स एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन in accordance with the prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The container, next point, the container shall be labeled. वो container पे label लगाना है properly कि this is a biomedical waste, क्योंकि आगे जाके वो किसी के साथ mix नहीं होना चाहिए. The container shall be labeled. These are the three important point of biomedical waste. मैंने बताया again 15 to 20 pages का PDF है हमारे important ये. Important point for this rule which was made in 1998 for biomedical waste is, again I'm repeating, if you want you can go through. अगर आपने कुछ mistake किया copy करने में तो go through कर सकते हो. I'm repeating the 3 points. Okay, listen carefully. First point, a biomedical waste shall not be mixed with other waste. This is the first point. Second point, the biomedical waste shall be segregated into container, मतलब separated into container or bags at the point of generation. At the point of generation in accordance with the prior to its storage, transportation, treatment and disposal. Storage, transportation, treatment and disposal के पहले ही उसको container के अंदर segregate करना है, store करना है. And the last point है the container shall be labeled. उसको labeling करना है. Clear to everybody the 3 points. By chance, मैंने again बोला chances आने का बहुत कम है, but we will not take any risk. तो बायोमेडिकल वेस्ट में आ गया रूल्स, तो आप एक 3 पॉइंट लिख सकते हो. वेरी इजी. मैंने जो रूल निकाला एकदम इजी पॉइंट में निकाला है. पीडीएफ बहुत बड़ा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज ई वेस्ट. ई वेस्ट, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ये बहुत बड़ा इश्यूज होने वाला आगे चल के, अभी भी इश्यूज है, आगे चल कर. क्यों? मैंने पहले ही बताया. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या क्या आता है बेटा? लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, मोबाइल. एवरीबडी इज यूजिंग द मोबाइल. मोबाइल का एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे. वो क्या बन गया? वो एनवायरनमेंट में वेस्ट बन गया. एंड द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लैपटॉप, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स आर इंक्लूडेड इन अ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. कैन दिस विल बी वेरी डेंजरस? यस, दे आर वेरी डेंजरस. व्हाई? उनके अंदर टॉक्सिक मेटल, हैवी मेटल्स होते हैं उनके अंदर.
उनके स्क्रीन पे जो नीचे पीछे ब्रेड बोर्ड होता है ना, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का, कभी कोई रिपेयरिंग करने पाएगा, वो सब जो डिवाइसेस उनके अंदर टॉक्सिक मेटल्स है, मर्क्यूरी, लेड, और ये अगर एनवायरनमेंट में चले गए, दे कैन प्रोड्यूस अ टॉक्सिसिटी इन अ सॉइल एंड वाटर, वाटर और सॉइल को टॉक्सिक कर सकते हैं। दिस ई वेस्ट टॉक्सिक कैन बी पॉइजन, टॉक्सिक मतलब मालूम ना, पॉइजनस, फेटल परसेंट, अगर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ गई हमारा डेथ भी हो सकता है, इसलिए द ई वेस्ट इज आल्सो वेरी वेरी डेंजरस। तो इसका भी मैनेजमेंट के रूल बनाया, अगेन इसका रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगेन मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाया आपको, विच विल बी वेरी मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ज्यादा आपको पर इसका पीडीएफ भी बहुत बड़ा था। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन ईच एंड एवरी पॉइंट। These rules, I'm talking about e-waste management rule which was made in 2011. These rules specify that it is the responsibility of the producers and consumers, producers जो बना रहा है and consumers हम, of electrical electronic goods to manage the e-waste generated, वो हमारा consumers और producer को ऊपर डाल दिया है कि you have to manage the e-waste। ये रूल के हिसाब से the rule specify that is the responsibility of producers and consumers of electrical and electronic goods to manage the e-waste। हमें और प्रोड्यूसर्स मतलब जो कंपनीज को मैनेज करना ई-वेस्ट जनरेटेड, फर्स्ट रूल। सेकेंड, कलेक्शन सेंटर्स, ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल स्मॉल कलेक्शन सेंटर्स को जनरेट किया इन अंडर दिस रूल। वहां पे जाके लोग क्या कर सकते हैं, ई वेस्ट को क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके दे सकते हैं, दे विल हैंडल इन दिस वे, अपनी तरह से हैंडल करेंगे। कलेक्शन सेंटर्स ओपन करने को बोला है। थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। आपको उसको डिसमेंटल करना है, नो व्हाट इज मेंटलिंग, राइट? मेटल ओके मालूम है, तो मेंटलिंग मतलब उसको आप मेल्ट कर रहे हो, मेंटलिंग का मतलब होता है मेल्टिंग। तो अगर आप मेल्टिंग कर रहे हो या उसको रिसाइकल कर रहे हो, उसको एनवायरमेंटली साउंड मैनर में करना है। रूल बनाया है कि एनवायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। देन इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देयर शुड बी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर व्हीकल्स के थ्रू ई वेस्ट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल कराया उन्होंने एज पर द रूल ऑफ 2011। एंड रिडक्शन इन द यूज ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैंने आपको बताया इनके अंदर हैजार्डियस सब्सटेंस होता है और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो रिडक्शन इन द यूज, इनके अंदर जो हैजार्डियस सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करो। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस यूज करना है। Reduction in the use of hazardous substance in the manufacture of electrical and electronic components. These are the rules which are made by a government for management and handling of e-waste in 2011. Again, I am repeating, किसी ने कोई point miss कर दिया है तो they can write down या note down first point. These rules specify that it is the responsibility of the producers and consumers of electrical and electronic goods to manage the e-waste generated. Second, there should be a collection centers. गवर्नमेंट ने बोला कि हर जगह कलेक्शन सेंटर्स होना बहुत जरूरी है फॉर ई वेस्ट। थर्ड, एनवायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग, एनवायरमेंटली साउंड डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट होना चाहिए एज पर दिस रूल। फोर्थ, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में देयर शुड बी अ गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। एंड फोर्थ, reduction in the fifth or last point, fifth point, reduction in the use of hazardous substance in the manufacture of electrical and electronic equipments. Reduction in the use of hazardous substance in the manufacture of electrical and electronic equipment. These are the rule made by the government. ये सब रूल गवर्नमेंट ने क्यों बनाया? To safeguard the environment. ये सब environment के लिए। Sound pollution can create problem to us. वो pollution को कम करना है। Biomedical waste can create a problem to us. उस waste को कम करना है, manage करना है। E-waste can cause a problem to us, can cause a problem to the environment. उसको कम करना है, उसको control करना है। Then they have made it. This all rule the government जो बनाया है हमारे लिए बनाया है, environment के safeguard के लिए बनाया है। Government भी अलग time to time नए नए rules बनाते हैं for the safeguarding the environment. क्लियर टू एवरीबॉडी? अगेन मैं बोला लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, बट प्लीज आपको लर्न करना है। मैं वर्कशीट में भी क्वेश्चन डालूंगा,
क्योंकि वी डोंट नो, बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट डिफाइन द बोर्ड. नाउ एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1972 में क्या बनाया बेटा, लॉज बनाया. ओके, तो दे हैव मेड अ लॉ फॉर व्हाट, फॉर अ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन विच ईयर, इन 1972. उसमें क्लॉज है, क्लॉज मतलब सब डिवीजन. पहला है एज पर द क्लॉज 49A, वो क्या बताता है, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैन. एनिमल्स ज्यादा कम हो गए, जो भी इतने कम हो गए कि कभी भी एक्सटिंग हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स के ट्रेडिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया है. इंडिया है, दिस इज फॉर इंडिया. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया ने पार्लियामेंट में पास किया था कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो रेयर एनिमल्स का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट ट्रेड ऑफ रेयर एनिमल्स बिकॉज दैट ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स कंप्लीटली बैन एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है. तो रेयर एनिमल्स को बचाना है, इसके लिए उनको बैन, उनको ट्रेडिंग को कंप्लीटली बैन किया. As per the clause of 49B, use of articles prepared from skin or organs. आपको मालूम है स्किन से एनिमल्स के बहुत ज्यादा हंटिंग लोग करते थे. स्किन से क्या करते थे, दे यूज्ड टू मेक अ लेदर, शूज, बेल्ट, जैकेट, एंड पहले बहुत बिकता था. ओके, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन बैंड. अभी आप एनिमल्स के स्किन ऑर्गन्स को नहीं यूज कर सकते फॉर एनी, ओके, फॉर एनी डिवाइस, फॉर एनी मटेरियल, एनी सब्सटेंस, कुछ बनाने के लिए नाउ यू कैन नॉट यूज. इस पे कंप्लीटली बैन लगा दिया है. अगर अभी कोई यूज कर रहा है, वो पकड़ा गया तो प्रॉब्लम होगा. यस, कुछ एनिमल्स का अलाउ करते हैं जो एक्चुअली लेदर इंडस्ट्रीज में यूज होता है. वो कौन से एनिमल्स है, द एनिमल्स व्हिच आर कट इन अ स्लॉटर हाउस. स्लॉटर हाउस में गोट को कट करते हैं, राइट, बफेलोस को कट करते हैं, यू नो, स्लॉटर हाउस. स्लॉटर हाउस में से जो स्किन का वेस्ट निकलता है, दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द व्हाट, टू द लेदर इंडस्ट्री. क्योंकि कभी भी कानपुर जैसे एरिया में बहुत सारे लेदर्स इंडस्ट्रीज हैं, बट वो इंडस्ट्रीज को जो लेदर है वो स्लॉटर हाउस से ट्रांसफर हो सकता है. जंगल में किल करके यू कैन नॉट ट्रांसफर. अपने फॉरेस्ट में किसी एनिमल्स को किल करके घास गया है, अगर आप पकड़े गए, यू कैन हैव अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस, आपके ऊपर हो सकता है. The use of articles prepared from skin or organs of wild animals नहीं अलाउड है. वो कौन से एनिमल्स अलाउड है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. वाइल्ड एनिमल्स का तो टोटली बैन लगा दिया. अंडरस्टूड, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का कंप्लीटली बैन लगा है. एंड एज पर द क्लॉज ऑफ 49C, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स, मतलब जो ह्यूमन बीइंग हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनाए हुए जो चीजें होते हैं उसको हम लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं. मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल इज कंपल्सरी. और आपने कोई भी आर्टिफैक्ट्स बनाया है और उसको आप सेल कर रहे हो, यू हैव टू डिस्क्लोज, आपको बताना है. विदाउट डिस्क्लोजिंग द गवर्नमेंट, अगर आपने उस चीज को सेल किया, अगेन यू विल हैव टू फेस अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस. किसी भी रेयर वाइल्ड एनिमल्स का आर्टिफैक्ट, है ना, एलिफेंट्स का टूथ यूज करते हैं ऑल, यू नो, टू मेक ऑर्नामेंट्स. आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो बिकते हैं, ओके, इमिटेशन ज्वेलरीज के अंदर यूज किया जाता है, टीथ यूज किया जाता है, बोन्स दे यूज एंड ऑल. वो सारा चीज अगर आप रेयर वाइल्ड एनिमल्स का यूज कर रहे हो, पहले गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करो, देन व्हेन यू कैन सेल. आपने बिना गवर्नमेंट को डिस्क्लोज किए अगर सेल किया, अगेन यू विल हैव टू फेस अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस. तो देखो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के गवर्नमेंट ने कितने एक्ट पास किया है, जो ऑलरेडी 1972 में पास हो गया था. पहला ये क्या है, रेयर एनिमल्स का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो. सेकेंड क्या है, यू कैन नॉट यूज द स्किन एंड ऑर्गन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ओके, वाइल्ड एनिमल्स का स्किन ऑर्गन्स यूज नहीं कर सकते हो. एंड इफ यू आर यूजिंग एनी आर्टिफैक्ट्स मेड बाय रेयर वाइल्ड एनिमल्स, ओके, वो भी आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. विदाउट गवर्नमेंट परमिशन यू कैन नॉट सेल. और ऐसा हो गया, पकड़े गए, अगेन यू विल हैव टू फेस अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एक छोटा सा पैराग्राफ है बट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशंस. चिपको मूवमेंट क्लियर हो गया, हगिंग और क्लिंगिंग द ट्री टू सेव द ट्री. साउंड पोल्यूशन के अंदर क्या क्या कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल बनाए 2000 में, ऑलरेडी हैव डिस्कस. फॉर कंट्रोलिंग बायोमेडिकल वेस्ट, व्हाट आर द रूल गवर्नमेंट हैज मेड इन 1998 फॉर मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, ऑलरेडी हैव डिस्कस. ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए व्हाट आर द रूल गवर्नमेंट हैज मेड इन 2011 फॉर मैनेजमेंट हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट, दैट ऑलरेडी हैव डिस्कस. एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 1972 में गवर्नमेंट ने क्या रूल में आया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. दिस पेज इज वेरी मच क्लियर. मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लिया तीन चीज को एक्सप्लेन करने के. I think everything is clear to everybody. You can go to the next page. Okay, page almost is done. Now we can go to the page number 42. We can go to the page number 42. That is the next page. This page is done. Okay, next page.
Okay. Yes. Here they have shared a small story. Not small story, we can say big story of small one. A person known as the Jadov Molai Pang. आपने इसका नाम सुना भी होगा. इसने अकेले ने पूरे फॉरेस्ट को डेवलप किया. सिंगल पर्सन हैव एस्टेब्लिश अ कंप्लीट न्यू फॉरेस्ट. अपने उसने अपना पूरा लाइफ लगा दिया टू डेवलप अ फॉरेस्ट. इतना ट्रीज लगाया कि उसने इंडिविजुअल अकेले एक पूरे फॉरेस्ट को डेवलप कर दिया. तो कैन यू इमेजिन अ सिंगल पर्सन अगर चाहेगा with its hard work and determination he can develop a big forest. तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के इसके बारे में डिस्कस किया है कि वी कैन गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस मैन. पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है इनको. पद्मश्री वन ऑफ द बहुत बड़ा अवार्ड है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस पर्सन ने अकेले ही पूरे फॉरेस्ट को डेवलप किया ना. अब सोचो एक पर्सन चाहे तो फॉरेस्ट को डेवलप कर सकता है. एटलीस्ट हम लोग अपने लाइफ में नई फॉरेस्ट कुछ ट्रीज तो प्लांट कर सकते हैं. इनसे इंस्पिरेशन लेके एटलीस्ट अपने लाइफ में 4 to 5 ट्रीज भी हम लोग ने प्लांटेशन किया. ईच एंड एवरी पर्सन ने पूरे लाइफ टाइम में अगर 4 to 5 ट्रीज भी प्लांटेशन किया, सोचो क्या होगा. हाउ गुड वी कैन मेक एनवायरमेंट एंड नेचर. तो दिस वी कैन टेक इंस्पिरेशन फॉर दिस अ ग्रेट पर्सन जादव मोलई पैंग. what is given. Okay, मैं डिस्कस करता हूँ, then we'll discuss the video. मैंने वीडियो भी निकाला है. ओके, पहले इसको डिस्कस करते हैं पर्सन ने क्या किया था. Now see here, Jadov Molai Pang is highly capable person born in a nomadic tribe. Also, what is nomadic tribe? बंजारे लोग मालूम है जो एक जगह से मूव कंटिन्यूअसली दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रुकते नहीं है. सुना आपने, हिंदी में बंजारा बोलते हैं हम लोग. ओके, नोमेडिक ट्राइब ऑफ असम उसको बिलोंग करता है. वन टाइप ऑफ बंजारा फैमिली. Born in 1963, he is working as a forest worker since the 16 years के एज से he is working as a forest worker. बहुत ही छोटे उम्र से उसने काम चालू कर दिया था as a forest worker. 16 years. Once a large number of snakes died in a flood of ब्रह्मपुत्र रिवर. आपको मालूम है आसाम के ब्रह्मपुत्र रिवर में एवरी ईयर फ्लड आता है. बिहार एंड आसाम, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं. आप देखोगे एवरी रेनी सीजन में बिहार और असम में फ्लड आता ही आता है एवरी ईयर. मैं तो एवरी ईयर सुनता हूँ कि देयर इज अ फ्लड एंड मेनी पीपल गेट डाइड एंड ऑल एंड फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड होते हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण हमेशा फ्लड आता है इन रेनी सीजन. तो वंस अ लार्ज नंबर, एक बार फ्लड में बहुत सारे स्नेक्स मर गए थे. एंड ये देखे जादव मोले पैंग को बहुत बुरा लगा कि फील वेरी बैड, कितने स्नेक्स मर गए बिकॉज ऑफ फ्लड. ओके, फ्लोइंग बाय द विलेज. एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स मोले ने क्या किया. मोले प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स. बैम्बू कितना उसका फायदेमंद है. बैम्बूज बनो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं. द रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड द सॉइल. जल्दी उनको वाटर भी शेक नहीं कर पाता है, तोड़ नहीं पाता है. ओके, एज अ प्रिवेंटिव मेजर मोले प्लांटेड 20 बैम्बू प्लांटलेट्स इन. ओके, एंड इसके कारण क्या हो गया, बाद में फिर उसके बाद जब फ्लड आया बहुत सारे स्नेक्स बच गए और बैम्बूज में जाके छुप गए और उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया. खाली प्लांटेशन ऑफ बैम्बूज. In 1979, the local social forestry department of Assam began a social afforestation मतलब planting the trees. Deforestation मतलब forest को कट कर रहे हो, and the opposite of deforestation is afforestation, जब आप plants को लगा रहे हो. तो आसाम गवर्नमेंट का जो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, they began a program of afforestation project in on a 200 hectares of land. इतने बड़े लैंड में उन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट को सेटअप करने का काम चालू किया. मोलई was one of the few forest workers who were looking after that project. ये जो मोलई जादव मोलई पैंग थे, ये प्रोजेक्ट के बारे में देख रेख कर रहे थे. मोलई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीशन. और 200 हेक्टेयर्स का लैंड पूरा होने के बाद, कंप्लीशन के बाद में पर्सन रुका नहीं, it continue planted the trees after the completion of project. As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, a barren area मतलब बंजर, जहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, वो बंजर का जमीन जहाँ पे कुछ फार्मिंग नहीं कर सकते, पूरे barren area witness the forest cover over 1360 acres तक उसने स्प्रेड किया. जो 200 हेक्टेयर लैंड से चालू हुआ उसको 1360 एकर्स तक उसने एक्सपांड किया अकेले मिलके. Today this jungle in a Kokilamuk of
Jorhat district of Assam is the result of hard work for 30 years. ये पर्सन ने अपने पूरे 30 years लगा दिए फॉरेस्ट को डेवलप करने में. Almost spent his whole life to develop the forest. He has been awarded the prestigious Padma Shri award by the government of India. I have told you, इन्होंने बहुत ही prestigious award पद्म श्री अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. For his कोई नहीं कर सकता unparalleled work. Now it is well known as the Molai jungle. इसका नाम ही उनके नाम पे पड़ गया, and the government had changed their name, that jungle name as the Molai jungle on behalf of its name. Many people come together to destroy forest. एक forest को खत्म करने के लिए बहुत लोग मिल के forest को cut कर दे, destroy कर सकते हैं. But a single person अगर determined हो can establish a new forest. कितनी बड़ी बात है. Many person can destroy the forest together, but a single person with his hard work and determination can establish a new forest. इससे हमको inspiration लेना चाहिए this person. अकेले इन्होंने पूरे 30 years में एक पूरे forest को setup कर दिया. This is the reason why they have shared the story of this man, so that हम inspire हो और हम सबसे कुछ सीख पाए. Understood about this man? इसका मैंने small video, very simple person. आज भी मैं वीडियो दिखाऊंगा वो ऐसे ही रहते हैं. And still is a very simple person, ground to earth. इतना अवार्ड मिलने के बाद भी, इतना अच्छा काम करने के बाद, is a very simple person. आप वीडियो देखोगे तो आपको डाउट और क्लियर हो जाएगा और नॉलेज मिलेगा what he has done and how the person is. Okay. ये कंक्रीट का फॉरेस्ट नहीं है, ये नेचुरल फॉरेस्ट है. ये पोल्यूशन नहीं है, कोई नहीं है. तो नेचुरल जो है ना, या तो ऑक्सीजन जो मिला है, खाती है ऑक्सीजन. वो सुबह 3 बजे आके तो 3:30 बजे 4 बजे आ जाता है. बोट लेके आने से भी 20 मिनट समय लगता है. जब 5 बजे यहाँ पहुँच जाता है. जब बोट से फिर ऊपर निकलता है, बाईसाइकिल से आ जाता है. तो आने में जब आधा घंटा 1 घंटा ले लेता है. जितने भी जंगल पे देखता है, यहाँ के जितने में, ये मेरा बेटा बेटी सब लोग जाते हैं, सब लोग यहीं बैठे हैं. कंक्रीट के फर्श में नहीं रहता. वो लोग एसी रूम में बैठा है, फैन करता है. वो तो पोल्यूशन है, अल्लाह उल्लाह होता है. आदमी से साथ झगड़ा करके मरता है. ये तो झगड़ा करने वाला कोई नहीं है. वो प्राणी लोग अपन अपन काम करता है, अपन अपन खा जाता है, अपन अपन बैठा है, ऑक्सीजन लेता है. ये जिंदे रहता है, आराम से जिंदे रहता है. हॉस्पिटल भी ज़रूरत नहीं है, भेजने भी ज़रूरत नहीं है. वो लोग का बीमार नहीं है ना. आदमी मुख से बोला है, पता से बोला है, ठीक है ना, हवा से, मौसम से बोला है. जब बैठेगा तो पानी नहीं मिलता है. वो रहने से भी पानी, जब बारिश आता है वो रुक जाता है. जहाँ पानी पिएगा. इसके नीचे पानी आ जाता है, पानी पी लेता है. प्रकृति नहीं भगवान है, ये लोग प्रकृति है. वो लोग हमको ऑक्सीजन देता है जिंदे के लिए. हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग खा लेता है, मेरे को जिंदे के लिए ऑक्सीजन देता है. लेकिन जब तक पेड़ भी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड जब
ख़त्म हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड खाने वाला पेड़ नहीं है, इसके लिए क्लाइमेट चेंज होता है। इसके लिए ध्यान देने पड़ेगा कि एडुकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड एडुकेशन एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा शिक्षा बचपन से। बचपन में दिमाग में जो है ना लड़का बच्चा सब, ये पेड़ रुपेगा रोज दिन प्रैक्टिकली 5 साल बड़ा करने पड़ेगा उसको। जब प्रैक्टिकल बड़ा करने पर तो एग्जाम में वो पास हो जाता है, उसका ऑक्सीजन वो देगा, पेड़ नहीं देगा। 1 मिनट उषा बंद करना, ऑक्सीजन का कितना जरूरत है। जब ऑक्सीजन नहीं में टेक्नोलॉजी वो चंद्रग्रहण में जाए, मंगल ग्रह में कैसे जाएगा? I hope everybody have seen the video. Kitna simple person, still he is working in the forest. He cannot speak, Hindi bhi properly nahi aa raha hai. He cannot speak, but he has the knowledge. A nature is a god. See the statement what he said. A nature is a god. He have the knowledge कि the oxygen is supplied by the plants, and without oxygen we cannot survive. कोई भी बोल रहा है कि carbon dioxide is consumed by the, that much knowledge he is having. And most important, this all things should be start from a childhood. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. This all things should be start from a childhood. Childhood से from education point से from lower levels हम बच्चों को सिखाएंगे about the plantation of tree. Then only we can safeguard the uneducated person, but he has the knowledge. He know the importance of the nature. इस अकेले person ने कितना बड़ा किया ना, how amount of वाइल्ड एनिमल्स उसमें सर्वाइव कर रहे हैं. मेनी टाइप ऑफ एलिफेंट्स, लायंस एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो उसमें सर्वाइव कर रहे हैं. इतने को उसने इन्होंने लाइफ दे दिया. बहुत बड़ी बात है. सिंगल पर्सन अगर डिटरमिन्ड हो कैन डेवलप अ न्यू फॉरेस्ट. कैन यू अंडरस्टैंड द सिंपलिसिटी? आपको हंसी भी आई होगी उनकी बातें सुन के, बट इतना सिंपल पर्सन, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस पर्सन एंड वी हैव टू टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. I hope everybody understood about the achievement made by your Zado Molei Pang. Okay, so let us go again back to the textbook. Okay, now I think this paragraph is very much clear. Javed Zado Molei Pang के बारे में कुछ भी आ गया तो you can write down. Now I will explain this part. इसका भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन पहले I will explain you, then we'll discuss the video which is very important. पहले explanation हो चाहिए to understand. Environmental conservation and biodiversity. What is the environmental? This is the time को observe. What is biodiversity? इसको ब्रेक करो. Bio मतलब living being, and diversity means difference. I'm explaining. Bio means living being, and diversity is what बेटा? Diversity is the what? The difference. तो जितने भी living being present है, the living being which are present right now in the nature, all the living organisms are same की different. सारे living organisms एक जैसे की different है. Difference है उनके अंदर? Yes, difference है. तो बायो मतलब there are many living beings, but they all are not same. सभी के अंदर डिफरेंस है, सभी के अंदर डाइवर्सिटी है. That is called biodiversity. Now environmental conservation is important. सबको मालूम है एनवायरमेंट को कंजर्व करना, बिकॉज वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. हमने पहले डिस्कस किया क्या बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट. इतने सारे ऑर्गेनिज्म होना क्या जरूरी है? यस, जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी, every organism plays some role in the environment.
every organism plays some role in the environment. तो याद रखना हर एक ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, द इको साइकिल उतना स्मूथली चलेगा, द इकोसिस्टम विल बी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड, द साइकिल्स व्हिच आर देयर, बायोकेमिकल साइकिल्स उतना स्मूथली वर्क करेंगे, एंड उतना बेटर आपका लाइफ इजी होगा. तो बायोडाइवर्सिटी समझ में, द डिफरेंस इन अ लिविंग बीइंग, जितना ज्यादा डिफरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उतना बेटर है हमारे लिए. मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसको अफेक्ट करता है बेटा? इट अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हैव यू सीन द एग्जांपल ऑफ दिस इन एरिया? अपने एरिया में आपने एग्जांपल्स देखा होगा. आपके एरिया में आपने क्या एग्जांपल देखा होगा? आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कम एज में लोगों का हेयर व्हाइट हो जा रहा है. यस, the people are suffering from a lung disease, अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है. yes, the people are getting a heart attack in the young age. उसमें कहीं ना कहीं the big role is played by this pollution. तो आपने सोसाइटी में देखा, अरे 35 इयर्स का था उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे 40 एज में हार्ट अटैक आ गया, अरे इतने कम एज में उसका लंग्स खराब हो गया. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो डेफिनेटली आपने अपने एरिया में ऐसे लोगों को देखा होगा. दिस इज द एग्जांपल, द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और लिविंग वर्ल्ड हैज बीन रिचली डाइवर्स. हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो रिचली डाइवर्स है, मतलब उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. बट बिकॉज ऑफ हमारे मिस्टेक के कारण, बिकॉज ऑफ हमारे ग्रीड के कारण, नॉट नीड, वी हैव डैमेज द एनवायरमेंट, कि बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, चले गए इस दुनिया से, चले गए, एक्सटिंक्ट हो चुके, बिकॉज ऑफ हमारे मिस्टेक के कारण. जब और फॉर्म हुआ एंड रिसेंटली ओके, जब फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुक प्लेस, उस समय हाई नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थे, बट नाउ दे हैव गॉट डैमेज्ड. Our living world has been richly diverse. It consists of different varieties of plants and animals. हमारे living world में different type of plants and animals present है. However, we are not able to see some specific animals about which we have listed from our early generation. पहले जो हमारे दादा दादी बताते थे, ऐसे बहुत सारे organisms हैं जो अभी दिखाई नहीं देते हैं. Last 100-200 years में बहुत सारा changes हो गया. Now, who is responsible for this? We are responsible for this. हमने एनवायरमेंट को डैमेज किया एंड बहुत सारे एनिमल्स जो प्रीवियसली एग्जिस्ट करते थे, अर्लियर जनरेशन एग्जिस्ट करते थे, अब टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके. कुछ नेम्स मैंने निकाला है. पिंक हेडेड डॉग, पिंक हेडेड डॉग जिसके पास पिंक हेड होता है, उसका पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने निकाला है. पिंक द डॉग विच हैज अ पिंक हेडेड, पहले पाए जाते थे, अभी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए. एशियाटिक चीता, चीतास है बट एशियन चीतास ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ओके, देन राइनोसोर्स, 2 हॉर्न्स वाला राइनोसोर्स होता था, ओके, जिसको हम सुमेट्रिन राइनोसोर्स बोलते थे, इंडिया में पाया जाता था, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो अर्लियरली एग्जिस्ट करते थे, नाउ एक्सटिंक्ट हो गए. एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? वी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस. द ह्यूमन बीइंग आर रिस्पांसिबल फॉर दिस. बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारा रिचनेस हमारे मनी में नहीं है, हमारा रिचनेस हमारे घर में नहीं है, हमारा रिचनेस हमारी गाड़ी में नहीं है, हमारे टेलीफोन में नहीं, हमारे कपड़े में नहीं है. हमारा रिचनेस हमारा बायोडाइवर्सिटी है. अगर कोई रिच है तो जादव मोलेपेंग हमसे ज्यादा रिच है, इज मोर रिचर देन अस. भले उसके पास फाइनेंस नहीं है, बट ही हैज अ मोर अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ही इज लिविंग मच मोर हैप्पी लाइफ देन अस. समझ में आ रहा रिचनेस का मतलब? द बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द मनी इज नॉट द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. In nature, due to the presence of varieties of organisms, ecosystem and genetic variation within a species, तो हमारा जो richness है हमारे biodiversity में है. A biodiversity is the richness of living organism in nature due to presence of variety. और biodiversity क्यों present है? Between varieties of organism, different type of ecosystem भी biodiversity को support करते हैं, and genetic variation in the species also biodiversity को support करते हैं. Now biodiversity occurs at 3 different level. जो डाइवर्सिटी होती है 3 डिफरेंट लेवल पे होती है. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस. द डिफरेंस इन द ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस एट अ 3 लेवल. डिफरेंस कौन से बेसिस पे हो सकता है?
A difference can be on the basis of genetic and genes, on the basis of species, and on the basis of ecosystem. मैंने बताया there are different type of organisms. So the difference in the organism का 3 रीजन है, या उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है, या स्पीसीज के हिसाब से वेरी हो सकते हैं, या दे कैन वेरी एज पर देयर इकोसिस्टम. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, नथिंग टू वरी. Now what about genetic diversity? Very good example. Genetic diversity मतलब the organism of same species, organism of the same species, but genetically they are different. Try to understand. Organism of the same species, but genetically they are different. What does it mean? सारा का सारा ह्यूमन बीइंग एक कॉमन स्पीसीज को बिलोंग करता है, होमो सेपियंस. So we all belong to the common species, Homo sapiens. तो सारा ह्यूमन बीइंग का सेम स्पीसीज है, they all belong to same species. ना मुझे बताओ क्या हम सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे हैं कि हमारे अंदर भी डिफरेंस है? Whether the all human beings are same or there are difference in a human being, there are difference, but we all belong to same species. तो हम सब तो एक जैसे होना चाहिए. फिर हमारे अंदर डिफरेंस कैसे आ रहा है? हमारे अंदर जो डिफरेंस आ रहा है इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. हमारे अंदर का जीन्स अलग अलग है. मेरे बॉडी का जीन्स आपसे अलग होगा, आपका किसी और के साथ अलग होगा. जब हम सबको कंपेयर करें, हम सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एग्जैक्टली सेम, दैट इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. क्या वो हमारे लिए बेटर है? हम सब जेनेटिकली सेम नहीं है, हम जेनेटिकली अलग अलग. क्या हमारे लिए बेटर है? यस, हमारे लिए बेटर है. कैसे? लेट अस एग्जांपल. कोरोना वायरस से इतने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, व्हाई सम पीपल आर सेव्ड, सम पीपल बच जा रहे हैं, एंड सम पीपल आर डाइड. अंडरस्टूड? सब ह्यूमन बीइंग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चंस. मैं लेटेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं. कोरोना वायरस बहुत जन को हो रहा है, कुछ लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, रिकवर हो जा रहे हैं, एंड कुछ लोग का डेथ हो जा रहा है. दोनों का दोनों ह्यूमन बीइंग है. एक ह्यूमन बीइंग रिकवर हो पा रहा है, एक ह्यूमन मर जा रहा है. व्हाई इट इज? जो ह्यूमन बीइंग रिकवर आ रहा है उसका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी उसके जीन्स में हाई इम्यूनिटी है. और जो आदमी या पर्सन मर जा रहा है उसका इम्यूनिटी वीक है, उसके जीन्स में लेस इम्यूनिटी का इंफॉर्मेशन है. अगर हम सब लोग एक जैसे होते, या हाई इम्यूनिटी या लो इम्यूनिटी, हाई इम्यूनिटी होती तो ठीक है, अगर लो इम्यूनिटी सब जैसे होते हैं तो सबके सब मर जाते, पूरा का पूरा स्पीसीज वाइप आउट हो जाता. लेकिन हम सब एक जैसे नहीं है, इसलिए कुछ लोग सरवाइव करेंगे एंड सम विल डाई, यानी हमें सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं. यू गेटिंग मी? तो वी आर सेम स्पीसीज बट डिफरेंट जेनेटिक, डिफरेंट जीन्स, एंड इट इज हेल्पिंग अस टू सरवाइव. हमारे स्पीसीज को वाइप होने नहीं दे रहा है, स्वाइप होने नहीं दे रहा है, मतलब हमारे स्पीसीज को हम बचा पा रहे हैं. यानी कहीं ना कहीं इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके कारण बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन आल्सो गिव राइज टू डिफरेंस इन ऑर्गेनिजम्स. हमारे जीन्स, हमारे इंफॉर्मेशन. और क्या बेटर है नेचर के लिए? यस, इट इज बेटर. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज बेटर. सेम स्पीसीज में अलग अलग लोग मिलेंगे तो कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे अभी चालू है तो सारा का सारा स्पीसीज एक साथ ओके स्वाइप नहीं होगा, कुछ लोग बच जाएंगे और आगे चल के क्या करेंगे? न्यू जनरेशन करेंगे एंड वापस स्पीसीज को बड़ा करेंगे, एक्सपांड करेंगे. अंडरस्टूड? The occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity. Occurrence of diversity. Example: each human being is different from other. Possibility of wiping out of the species arise if there is a decrease. अगर decrease in the diversity होती तो हम लोग possibly एक species wipe हो सकता था, wiping out हो सकता था. Within the species उस नंबर इन्वॉल्व इन मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, अगर उनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होती तो उनके वाइपिंग होने का चांसेस बहुत जल्दी था, यानी दे कैन इजीली गेट किल्ड और डिस्ट्रॉयड. उनके अंदर डाइवर्सिटी है तो कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आल्सो गिव राइज टू अ बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट लेवल या फर्स्ट रीजन फॉर डाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. अंडरस्टूड? सेम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म बट जीन्स अलग अलग है, अलग अलग, सब एक जैसे नहीं है, एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग सम रोल. स्पीसीज डाइवर्सिटी. नाउ अलग अलग स्पीसीज है तो आपको मालूम है, लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ प्लांट स्पीसीज है, लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ एनिमल स्पीसीज है, यानी अलग अलग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. हर एक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, हाँ, अलग फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर है, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज प्लेइंग सम रोल
इन द एनवायरमेंट. ओके, इसके कारण भी तो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अलग अलग डिफरेंस. तो अगेन लिविंग बीइंग डिफरेंस, डाइवर्सिटी इन द लिविंग. तो अलग अलग स्पीसीज भी बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करता है. तो इनन्यूमरेबल स्पीसीज, इनन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, मैंने आपको बताया लैक्स ऑफ स्पीसीज ऑफ organism occur in nature and this is called species diversity. The innumerable species of organism are present here. Species diversity includes various type of plants. There are all plants एक जैसे नहीं, अलग अलग डिफरेंस है. सारे एनिमल एक जैसे नहीं, उनके अंदर डिफरेंस है. सारे माइक्रोब्स एक जैसे नहीं, तो अलग अलग स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स है, अलग अलग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है. दिस ऑल्सो गिव राइज टू अ बायोडाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल्सो गिव राइज टू बायोडाइवर्सिटी. Species diversity also gives rise to a biodiversity. And next is the ecosystem diversity. What are the ecosystem diversity बेटा? Ecosystem का टाइप मैंने क्या बताया था? What is ecosystem? Terrestrial ecosystem है ना, aquatic ecosystem, और एक मैंने बताया था natural and man-made ecosystem, वो भी इसमें आता है. Not terrestrial ecosystem. Terrestrial में भी सब टाइप है. Grassland areas है, forest है, टाइगर टुंड्रा रीजन है, डेजर्ट एरिया है. मुझे पता है ग्रासलैंड एरियाज में रहने वाला और टाइगर या टुंड्रा रीजन में रहने वाला ऑर्गेनिज्म एक जैसा है कि अलग अलग है? विल बी डिफरेंट, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है. एटमॉस्फेयर के हिसाब से व्हाट हैपेंड, द चेंजेस है सेकंड प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म. उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया है, तो इकोसिस्टम के हिसाब से एडेप्ट किया है, और इकोसिस्टम के साथ उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया है, तो उनके अंदर चेंजेस आया है, उनके अंदर वेरिएशन आया है, यानी इकोसिस्टम के कारण उनके अंदर डाइवर्सिटी आया है. तो दे आर लिविंग बीइंग. तो डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम. और सिंपल एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक लेते. वाटर में रहने वाला और लैंड में रहने वाला ऑर्गेनिज्म एक जैसा है? नहीं. टेरेस्ट्रियल वाले ने अपने अंदर टेरेस्ट्रियल के हिसाब से चेंजेस लाया है. पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म वाटर में पानी के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लेके आया है. तो इकोसिस्टम के हिसाब से उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आया और उनके अंदर क्या हो गया, डाइवर्सिटी हो गया. तो इकोसिस्टम के कारण उनके अंदर डाइवर्सिटी हो जा रहा है. तो इकोसिस्टम इज गिविंग राइज टू डाइवर्सिटी. That is, and they are living being. So diversity in living being is called biodiversity, and this diversity taking place because they are surviving in a different ecosystem. The ecosystem is also the reason for diversity. हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट भी हमारे अंदर चेंजेस लेके आता है, हमारे अंदर डिफरेंस लेके आता है. तो इकोसिस्टम, वो टेरेस्ट्रियल वाला अलग होगा, एक्वेटिक वाला, एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर वाला अलग होगा, सी वाटर वाला अलग होगा. ठीक है, इकोसिस्टम से अंदर डिफरेंस आ रहा है. तो इकोसिस्टम आल्सो गिव राइज टू डाइवर्सिटी. आपको समझ में अंडरस्टूड? इकोसिस्टम के कारण भी डिफरेंस आता है लिविंग बीइंग में. तो मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन. Ecosystem is formed through the interaction between plants and animals. No definition. Biotic, abiotic, when they interact with each other, they form an ecosystem. You know the definition. Many ecosystem are present. Many ecosystem. Ecosystem is formed through the interaction between plants, animals, and their habitat and changes in the environment. Each ecosystem has its own characteristics animal. डेंस फॉरेस्ट से कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स अलग होगा, ग्रासलैंड वाले एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, डेजर्ट वाले एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, टाइगर रीजन वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा, मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा. ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन characteristics animals, plants, microbes and abiotic factors. Ecosystem are also two types. मैंने आपको बताया नेचुरल इकोसिस्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब डैम या क्रॉप्स को आप ग्रो कर रहे हो, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हो, जब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. बायोडाइवर्सिटी मतलब a difference in a living organism is called biodiversity. There are many organisms which are there on the earth, but there is a difference in that organism, and the difference is better for the environment, better for us, and this difference in the living organism is called biodiversity. There are three reasons for the biodiversity. Genetic diversity, same species but genes अलग अलग है, same species के अंदर भी difference होगा. Best example is human being. सारे human being एक जैसे नहीं है. Species diversity, there are lakhs of species of plant, lakhs of species of animals, okay, thousands of species of microbes. वो सब अलग अलग स्पीसीज हैं एंड अलग स्पीसीज अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं. अगेन दैट गिविंग राइज टू बायोडाइवर्सिटी. एंड इकोसिस्टम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लेकर आया, अपने अंदर डाइवर्सिटी लेकर आया. दैट आल्सो द इकोसिस्टम आल्सो गिव राइज टू अ बायोडाइवर्सिटी.
वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, आई थिंक कैन कम इन बोर्ड एग्जाम, याद रखना। क्लियर, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई थिंक वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी, राइट। लास्ट पैराग्राफ में रीड करता था, आई वांट टू शो द वीडियो आल्सो बायोडाइवर्सिटी। देयर शुड बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। मैंने बताया जब तक हमारे अंदर रिस्पेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन, लव अगर एनवायरनमेंट के लिए नहीं आएगा, हम कभी भी कुछ भी काम एनवायरनमेंट के लिए नहीं करेंगे। So there should be a positive attitude of human being towards the environment for welfare of the entire living world. Positive attitude होना जरूरी है। For this purpose, following rules are important. आप क्या कर सकते हो? You can be a conservator. आप environment को conserve करो, कुछ तो कुछ करो। You can be conservator. Organizer हो सकते हो, आप लोगों को इकट्ठा करके क्या कर सकते हो? प्लांटेशन का काम कर सकते हो। Organize any event. गाइड कर सकते हो, नहीं कुछ तो अपने ब्रदर सिस्टर सोसाइटी में लोगों को, फ्रेंड को गाइड कर सकते हो। प्लांट फ्रेंड, आप क्या कर सकते हो? प्लांट और फ्रेंड, मतलब आप प्लांट कर सकते हो, ओके। आप फ्रेंड को प्लांट बना, सॉरी प्लांट को फ्रेंड बना सकते हो, एंड क्या कर सकते हो? प्लांटेशन कर सकते हो। हम अपने लाइफ में एटलीस्ट 3 to 5 प्लांट अगर हर इंडिविजुअल ने भी लगाया, दे विल बी चेंज द होल एनवायरनमेंट। डिस्क्राइब अबाउट द रोल यू विश टू परफॉर्म एंड योर प्लान्स फॉर दैट रोल। आप डिस्क्राइब करो कौन सा रोल लेकर आप कंजर्वेटर बनना चाहते हो, ऑर्गेनाइजर बनना चाहते हो, गाइड बनना चाहते हो, या प्लांट को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो और प्लांटेशन करना चाहते हो। ओके, यू कैन डू एनीथिंग, बट कुछ तो यू हैव टू डू फॉर द एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड? मैंने एक स्मॉल वीडियो निकाला अबाउट द बायोडाइवर्सिटीज, वो भी देख लेते, फिर मैं और एक्सप्लेन में तो डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ। ओके, आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स भी दिखाया। हाँ, दिस इज टाइप्स and there is one video of biodiversity also I believe. Yes, this is biodiversity and then हम learn करेंगे फिर types of biodiversity. स्क्रीन पे जो आ रहा है प्लीज रीड करना है, समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कितने टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने टाइप ऑफ प्लांट, कितने टाइप ऑफ एनिमल्स, कितने स्पीसीज वाटर में रहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचर। हमको क्या करना है, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का वीडियो भी देख लो। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया कौन सा है, जेनेटिक, देन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, उसका भी वीडियो है, आई वांट टू शेयर विद यू व्हाट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about biodiversity. Biodiversity is the variety of life in an area which is determined by the number of species in that area. It's the totality of genes, species, and ecosystems of a region. As biodiversity increases, so does the health of the ecosystem increase. Think of it as if you were running a business. You want your business to be healthy and make money. Imagine you sell shirts. If you only sold a black shirt with a heart on it, you are limited.
And if these shirts go out of style, then you're out of business. If you have a variety of shirts, as the fashion style changes, you are better able to adapt to these changes and continue to make money. As biodiversity increases, the ecosystem has a greater ability to adapt to changes. Biodiversity can be broken down into three types: genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Genetic diversity is the variety of genes which control inheritable characteristics that are present in a population or species. For example, ladybugs come in a variety of colors. The color is controlled by genes. This gives the species of ladybugs a greater chance of surviving as the environmental conditions change. Think of the variety of dogs. The different shape or color of dogs are controlled by genes and either increase or decrease genetic diversity. Greater genetic diversity increases the odds of survival of a species or population as the ecosystem changes. Species diversity is the number of species and the relative abundance of each species in a community. Take a look at the variety of mushrooms collected from a particular forest. Notice how many different species are found in this area. This habitat would represent an area of a high species of diversity. As species diversity increases, most likely the health of the ecosystem increases. And finally, ecosystem diversity is the variation in the ecosystems found in a region or the variation in ecosystems over the whole planet. It is a measure of the variety of biotic and abiotic factors present in an ecosystem. Rainforests usually have a high ecosystem diversity, and deserts or polar regions usually have a low ecosystem diversity. So there you go, biodiversity, genetic, species, and ecosystems. And as these three increase, then most likely the health of the ecosystem also increases. Thanks for watching. And I hope आपका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये वीडियोस और क्लियर हो गया होगा. तो बायोडाइवर्सिटी क्लियर बता, डिफरेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उसका जो 3 टाइप्स व्हिच हेल्प दिस डाइवर्सिटी. टुडे वी हैव लर्न अबाउट द पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन क्या है, चिपको मूवमेंट मैंने आपको बताया, हगिंग एंड ऑल. देन वी हैव लर्न अबाउट द रूल्स मेड फॉर साउंड पोल्यूशंस. I think everybody has copied rules made for biomedical waste and the rules made for e-waste. Then we learned the clauses for wildlife protection in 1972, A, B and C clauses. The hunting of rare species animals and organs के हम use नहीं कर सकते, all the 3 clauses. फिर we have learned about the word और ज़ादो मोलई पैंग, मैंने आपको वीडियोस भी बताया, you know, very humble, okay, ground to earth person, इतने बड़े अवार्ड भी मिल गया, but still is working for the word for the forest. And वो बोला he's my family, the trees are my family. इतना uneducated person, but he knows कि हमको plants से ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड it is consuming and the nature is our god. ऐसा एटीट्यूड उसके माइंड में है. तो ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर भी आना चाहिए. And we should respect the what? Respect the environment. तभी हम environment को सेफगार्ड करते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं ऐसे पर्सन से. तो दैट वीडियो से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा. एंड बायोडाइवर्सिटी से भी आपको 3 जो चीज है वेरी मच क्लियर हो गया. राइट, अगेन we will stopping the class today, ending the class today. I hope you have understood everything. I think एक next class तक शायद भी चैप्टर हो जाए. ये क्या 1 more class लगेगा, then the chapter will be finished. Again इसका जो मार्किंग मैं आपको पोस्ट करूंगा and I will give you the worksheet. सोशल हेल्थ का टेस्ट पेपर इज रेडी, क्वेश्चन पेपर इज रेडी. तो मैं या आज या कल आई विल पोस्ट द क्वेश्चन पेपर. 30 मार्क का पेपर है वो, 30 मार्क का. टाइम अलॉटेड इज 1 hour 30 minutes. यू हैव टू राइट इन अ बुक और अ पेजेस जो भी है. अंडरस्टूड? एंड देन मुझे बोलना है, पोस्ट करना है, यस सर आई हैव फिनिश्ड. चाहिए तो आप पेपर भी पोस्ट कर सकते हो. अंडरस्टूड? एटलीस्ट आपको फिनिश करना है. होप वो जो 5 वर्कशीट्स एवरीबॉडी हैव डन. सब लोग का मैसेज नहीं आ रहा है 5 वर्कशीट का. खाली सम स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया अबाउट द कंप्लीशन ऑफ 5 वर्कशीट. आई वांट एवरीबॉडी जिसने फिनिश करे दे हैव टू यू नो एटलीस्ट पोस्ट मी पर्सनली कि सर वी हैव फिनिश द 5 वर्कशीट. अगर नहीं हुआ है तो मुझे पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, बिकॉज दिस वर्कशीट इज नॉट फॉर टाइम पास. प्लीज आपको वर्कशीट कंप्लीट करना, देन यू विल गेट अ प्रैक्टिस. एंड जो टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज मैंने भेजा था, आई होप एवरीबॉडी हैव लर्न, क्योंकि वो टेस्ट पेपर में ज्यादा यूज होने वाला है. ठीक है, तो टिल देन
Okay, be safe. Okay, bye. Take care, beta. Good night.